Hello dear aspirants, welcome back to Vyas IAS CSAT course lecture number 8. Now let's start with the number system question which are little on the complex side. Okay, so let's begin. Look at this question. We have when 876. Look at this question we have. It is saying when 876 is added to another 3-digit number 2p3, we get a 4-digit number 10q9 and it is divisible by 11, then value of p minus q. So what it is basically saying is that you have the number 876 and it's added to another 3-digit number which is 2p3. Okay, so add 2p3 here, so we get a 4-digit number that is 10q9 which is divisible by 11. Okay, 10q9 which is divisible by 11. So then what is the value of p minus q? What is the value of p minus q? See, now we have a number which is 10. Here it is q and it is divisible by 11. So if for example, let's say this number, last number is 9, so this number to be completely divisible should come equal to 99. Okay, this number to be completely divisible should come equal to 99. So you have 10 q9. Okay, 10q9. Then see, then q has to be 8. Why? Because when it will be 1089, then this will be what? 99 and this will be 9. So this will be 99. So this is how you will get. Okay, sorry, this will be a 9. Okay, so this is how you will get this. So 99 into 11 is equals to this. All right, is equals to this. 1089. All right, 1089. So is divisible by 11, then the value of p minus q is. So अभी देखिए p जो है 2p3, p जो है ये क्या है? अभी ये अगर 8 है तो obviously you can find what is 2p. Okay, this is 1089. This is 1089. This is 7 and this is coming 8, so p has to be 9. Okay, when p will be 9, then this, okay, this addition, yeah, this addition, this is about addition, sorry. So so we got here q equal to 8. All right, we got here q equal to 8. Now 876 plus 2p3 will give you 1089. So you have 9 here and you have 8 here and you have, so p is obviously equal to 1. P is obviously equal to 1. All right. So p minus q is what? Q is 8. All right, p is 1, so p minus q is minus of 7, minus of 7. All right, it is minus of 7. Okay, okay. Let's move on to the another question. See, this is saying uh, find the maximum number of 5 digits that is exactly divisible by 79. So we have a number of 5 digit that should be exactly 7 divisible by 79 and you need to find the maximum number. So इसमें basically क्या है कि 79 का हम जब ये 10000000 से रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे, ये 5 डिजिट का नंबर है तो हमें 6 डिजिट का नंबर चाहिए, ठीक है ना, 6 डिजिट का नंबर। अभी देखिए मैक्सिमम नंबर जो होगा तो वो जो इसका रिमाइंडर बचेगा अगर उससे माइनस कर देंगे तो हम उस नंबर पे आ जाएंगे जो मैक्सिमम नंबर होगा, जो रिमाइंडर भी होगा, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं, 79 को डिवाइड करिए 100 से, तो 79 वन टाइम 79 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। नाउ यू विल हैव व्हाट 210। नाउ यू विल हैव 210। नाउ दिस विल गो 2 टाइम्स। व्हाई? बिकॉज 3 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो 2 9 आर 18, 1 यू हैव 15, सो दिस इज 158। Okay, this is 158. You have 2 here. Okay, you have
5 here. Okay, you have 2 here, you have 5 here, you have 0 here. Okay, you have 0 here, so this will be equal to 210. Now you have 0 here. Okay, now you have 0 here. Now again, I think 7 5, 9 5s are 45, 4 7 5s are 35, 35 plus 4 is what, 395. Okay, 395. So this is not going. Let's check for another number. 79 into 6. 7 9 9 6 are 54, and you have 7 6 are 42. So 474 will go. Alright, 474 will go. 7 से तो बड़ा हो जाएगा. So here this will come equal to 6. Alright, this will come equal to 6. This will come equal to what? 5. Alright, this will come equal to no, sorry, this will come equal to 4. You have 4 6. Okay, and this will be 0, so you have 4 6 0. All right, now again we have to put some number, so obviously we will put 395. 395, so 5 is the remainder here. And what is this number? This is 9, this is 6. Okay, so basically what you are getting here is this becomes 5, so this becomes 6, so 65 is the remainder here. 65 is the remainder here. So basically 10000, this is a 6 digit number. इसमें से 65 माइनस कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5 3, okay, 9935. Okay, 99935. So that is what it is. Okay, that is what it is. So let's move on. Now see, look at this question. The remainder went 10 to the power 10 plus 10 to the power 100 plus 10 to the power 1000 when divisible by 7 is what? Okay, 10 to the power 1000 till how many zeros are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have 10 zeros here, right? We have 10 zeros here, so we have to find the remainder here. Now 10 to the power 10 when divided by 7. Okay, 10 to the power 10 when divided by 7, what will be the remainder? See, we can put in this format. Okay, 10 to the power 6 into 10 to the power 4 divided by 7. Now 7 is a prime number, so this will satisfy this property, a to the power p minus 1 divided by p. The remainder will be 1. Okay, the remainder will be 1. So I got here 1 as remainder for this term, and for this I will be getting what? 3 to the power 4 as. Okay, 3 to the power 4 divided by 7. Alright, to the power 4 divided by 7. Now you have 10 to the power 100. 10 to the power 100 divided by 7. So in the same manner you have basically 10 to the power 60, or you can 10 to the power 96 divided by 7. See, because in all these class we have already seen that whether it is a to the power p minus 1 or a to the power n into p minus 1, for any of this thing we can do this. Okay, for any of this thing we can do this. So 6 into 16, we have 6 into 16. So 10 to the power 6 into 16 by 7 dot 10 to the power 4 is what? 3 to the power 4 by 7. Again you are getting 3 to the power 4 by 7. Okay. So similarly for 10 to the power 100, you will get what? 996. Okay. 996. Why? Because see, we need a number that should be divisible by 6, then only it will be a factor. And you see this is divisible by 6, why? Sum of the digit 9 plus 9 plus 9. Okay, which is what? 18 plus 6 as is 24. It is divisible by 3 and it is divisible by 2 as well because it is an even number. So this, and then what is left? 10 to the power 4. एंड ये 10 टू द पावर 4 का रिमाइंडर क्या लिख सकते हैं? 10 डिवाइडेड बाई 7 लिखिए, 3 टू द पावर 4 हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 हो जाएगा, तो ये 3 टू द पावर 4 बाई 7 हो गया, ठीक है ना? 3 टू द पावर 4 बाई 7 हो गया, तो ये 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 और ये 10 डिजिट्स हैं, तो हमको 3 टू द पावर 4 तक जाना है, 3 टू द पावर 4 तक जाना है। अब इसमें हमको रिमाइंडर पता करना है, ठीक है ना? इसमें हमको रिमाइंडर पता करना है, तो बेसिकली ये क्या हो गया? 10 इंटू 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 7। ओके, और ये 10 का फिर से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा,
तो ये 3 to the power 5 डिवाइडेड बाई 7 हो गया. So this becomes 81 into 3. So this will be 243 by 7. So 7 threes are 21 and this becomes what? 33. Okay, this becomes what? 33. So you know what, that you will be getting here 7 fours are 28. So you get 5 as remainder. So you get 5 as remainder for this. So this question is also easy. It is just that because the numbers are getting bigger and देखिए देखने में it's a scary question. Okay, but once you know the concept, you know nothing is scary. तो ये लंबे लंबे scary question से कभी डरिए मत, है ना. It is not scary when you know the concept. Guys, look at this question. It is saying 2 square plus 22 square plus 222 square plus 2222 whole square and so on till 222 till you have 49 twos square when divided by 9. So it will give remainder what? So see, 2 square divided by 9 will give the remainder 4. 22 square divided by 9, okay, 22 square divided by 9 will give the remainder what? Will give the remainder 16 by 9, that is, you will get 7 as remainder. Similarly, 222 square divided by 9 will give what? You will have what? 9 twos are 18 and 9 9 fours are 9 fours are 36. So you will be left with 6 square. So what you are going to get as remainder here? 36 by 9. Okay, 36 by 9, that is again 0 as remainder. Let's check this for 2222 whole square. Okay, 2222 whole square. So you will get what? 9 twos are 18 obviously, and then 9 fours are 36. Okay, 9 fours are 36 and then 62 you are getting. Okay, when you are getting 62, then you will get minus 1 or 8 as remainder. Okay, minus 1 or 8 as remainder. So 8 square by 9 is what? 64 by 9, which is 1 as remainder. So you will have 1 as remainder. For which one? This 222 4 times. Okay, you will have 1 as remainder. Now let's check for 2 2 2 2 5 times. Okay, see, we are just trying to check the cyclicity here. एक बार हमको साइकिल मिल जाएगी तो हम 49 तक नहीं जाएंगे, हम रुक जाएंगे बीच में, बस एक बार हमको साइकिल मिल जाए, ठीक है ना. तो ये 2 2 2 5 टाइम्स है, ठीक है ना. तो देखिए अब तो डिवीजन भी आसान हो गया यहाँ पे क्योंकि ये सिमिलर डिवीजन है ना. सो हमको पता है ये क्या आ जाएगा, 4 आएगा 42, ये 4 आएगा यहाँ पे 24, ये तो पता चल गया, ठीक है ना. फिर उसके बाद वहां पे क्या आ रहा था, यहाँ पे देखिए आपका आ रहा था 62, ठीक है ना. तो यहाँ पे तो मैंने -1 किया, लेकिन अगर डिवाइड करते तो किससे करते? 9 6 54 से, तो आपका 8 बचता, है ना. तो वही करिए, आपने क्या करना है कि 8 से डिवाइड करिए, ठीक है ना. 54 रहेगा, 54 62 माइनस 54 आपका 8 आता है, 82, 82 विल बी द नेक्स्ट वन, ठीक है ना. तो 9 9 81 कर लीजिए, तो आपका क्या बच जाएगा? 1 एज रिमाइंडर. तो देखिए कैलकुलेशन इजी हो जा रहा है बिकॉज हमने यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है ना. तो अब हम देखिए अभी हमको क्या नंबर मिले? 4701. ऑल राइट, 4701 एंड देन आई थिंक 1 ही मिल रहा है ना. देन वी आर गेटिंग 1 itself. ओके, देन वी आर गेटिंग 1 itself. सो लेट्स चेक कि क्या साइक्लिसिटी है इसकी. ओके, लेट्स चेक कि इसकी साइक्लिसिटी क्या है. ओके, ओके, लेट्स चेक. अब देखिए नाउ वी आर टेकिंग 6 twos हियर. सो 6 twos डिवाइडेड बाय 9,
तो 5 तो तक तो कर लीजिए, 2 4 8 9, ठीक है ना। 2 4 8 9 ये 5 नंबर्स का हो गया। आखिरी में हमको क्या रिमाइंडर मिला था? 12। 12 रिमाइंडर मिला था। सो 12 रिमाइंडर आएगा अगर, ठीक है ना, तो वो कितने बार जाएगा? 9 1 टाइम्स। ओके, 9 1 टाइम्स। सो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर, okay, divided by 9, that means 0 is the remainder, that means 0 is the remainder। तो अभी यहाँ पे 0 मिल गया, तो हमने कितने टर्म्स के लिए कर लिया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 टर्म्स के लिए कर लिया। तो ये 2 4 8 9 1 ये याद रखें। लेट्स बाकी क्या है, लेट्स रब दिस ऑफ। ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग, यहाँ तक कर लिया कि हमने 6 2s ले लिए। जरा 7 2s भी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 2s ले, डिवाइड दिस बाय 9। सो बेसिकली क्या होएगा? 2 4 8 9 1। ओके, तो आपका 12 आ जाएगा। आखिरी में आपका 12 आ जाएगा। आपने 12 को 9 से सब्सट्रैक्ट किया, सो यू आर गेटिंग 32। सो यू आर गेटिंग 32। सो बेसिकली 9 4 36 होता है ना, 9 4 36 होता है। तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा? 9 3 27 कर लीजिए, ठीक है ना। 9 3 27 कर लीजिए, 5 आपका रिमाइंडर बचता है। 5 स्क्वायर कर लीजिए, तो 25/9 करेंगे तो कितना आएगा? -2, या अगेन हमको 7 रिमाइंडर मिल गया, ठीक है ना। 7 रिमाइंडर मिल गया, ठीक। ये हो गया 7 टर्म्स के लिए। लेट्स चेक दिस फॉर 8 टर्म्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इसमें बेसिकली लास्ट में आपका क्या आया था? यू गॉट 5 एज रिमाइंडर, ठीक है ना। तो आखिरी में 52 आ जाएगा। आखिरी में 50, आखिरी में 52 आ जाएगा। तो 52 के लिए क्या करना है? सो यू हैव 50, आखिरी में 52 आ जाएगा। 52 के लिए क्या करना है? ऑब्वियसली 9 5 45 आएगा आपका, 45, ठीक है ना। सो 45 को इससे माइनस करेंगे, 7 का स्क्वायर आएगा। 7 का स्क्वायर 9 से डिवाइड करेंगे, 49। तो आपका अगेन क्या आ रहा है? 4 एज रिमाइंडर आ रहा है। 4 एज रिमाइंडर, ठीक है ना। यू विल गेट 4 एज रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरीके का आप करते रहेंगे, इसकी साइक्लिसिटी चलती रहेगी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट टर्म का करेंगे। तो आपका ये 52 आया था, लास्ट में आपका 7 आया था, 72 करिएगा, ठीक है ना। 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 रिमाइंडर आया था, तो फिर आपका 9 बचे, तो फिर आपका 2 बचेगा लास्ट में, ठीक है ना। फिर आपका 2 बचेगा, फिर आपका वही स्क्वायर होएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? 4 रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। 4 रिमाइंडर आएगा। तो अब आप देखिएगा इस तरीके की साइक्लिसिटी चलती रहेगी। कैसी? 4 7 0 1 1 0 7 4, ठीक है। इस तरीके की अपनी 9 नंबर्स की साइक्लिसिटी चलेगी, है ना। ये इसके बाद आपका 0 आया, है ना।
0 आया जब 9th नंबर आया, एंड फिर आपका 4 से चालू हो जाएगा, फिर आपका 4 से चालू हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस विल बी द साइक्लिसिटी 4701 10740, एंड देन अगेन 4701 10740। तो ये इस तरीके की साइक्लिसिटी चलेगी, है ना, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, आपको बोल रहा है 49 टाइम्स ये टूज होंगे। तो आपने क्या करना है, ये जो रिमाइंडर है इसको ऐड करके, है ना, बिकॉज ये 9 नंबर्स हैं, तो 5 इंटू दिस प्लस 3 नंबर और बचेंगे, ठीक है ना। 5 इंटू दिस प्लस 3 नंबर और बचेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए और आगे 3 नंबर आएंगे, तो और कौन से नंबर आ जाएंगे, 470, ठीक है, 470 आएंगे। तो बेसिकली हमको यहाँ पे करना क्या है, आप ये जो आपका आया है 4701100740, सो दिस इज, ये क्या है, 9 नंबर्स है। सो 5 इंटू वट दिस 7 plus 7 14, 14 plus 2 is what, 16, 7 plus 7 14, 14 plus 2 is 16, and 16 plus 8 is what, 24, 16 plus 8 is 24, ओके, 16 प्लस 8 इज 24, एंड ये आपका होगा, सो दिस विल बी व्हाट, 5 4 आर 20, ओके, एंड दिस विल बी 120। उसके अलावा क्या है, आपको वही 470 ऐड करना, मतलब 11 और ऐड करिए इसमें, तो आपको 131 मिलेगा। अब ये 131 को 9 से डिवाइड करिए, सो यू विल हैव व्हाट, 9 1 9 obviously, and then you have 41, okay, and you know that we have 9 5s are 45, all right। so हमारा जो रिमाइंडर है वो -4 है, यानी -4 है तो क्या है, 5 है, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा सा ये डिवीजन का, आपको हर बार पूरा नंबर नहीं डिवाइड करना है, आखिरी में बस जो भी नंबर रिमाइंडर में आता है उसको 2 ऐड करना है, तो आपको ये साइकिल पता चल जाएगी, आप ये साइकिल चेक कर सकते हैं। फिर इस साइकिल चेक करने के बाद ये 5 ला सकते हैं। तो इतना ही करना है इसमें, है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस थिंग। ये थोड़े क्वेश्चन हैं ऐसे जो थोड़ी टफर एंड में नहीं है, बट दे आर ऑन द लेंथियर एंड, वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम इन आवर एप्टीट्यूड पेपर, सो दिस इज आवर प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन, बट विद प्रैक्टिस ऑब्वियसली इट विल इम्प्रूव फॉर यू। So let's move on to the next question. Uh, Again you have this question, see इसमें भी वही है, sum of the multiplication of so sum of the digits in this multiplication will be, okay। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन की डिजिट्स आएंगी उसका सम क्या होएगा। Guys, look at this question. The sum of the digit of the multiplication will be, तो ये एक मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है आपको बहुत ही लंबा सा, एंड सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन आपको पूछा है। सो यू हैव हाउ मेनी टर्म्स, 1 2 3 4 5। तो बेसिकली ये कैसा है, यू हैव 202 20002 200000002 एंड 2000, ऐसे करके टूज है आपके पास, एंड देन यू हैव 2 एंड 31 टूज। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको इसका जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें जो डिजिट्स आएंगे उसका सम निकालना है। अब आप देखिए ये जो नंबर है ये 31 जीरोस तक जा रहा है, तो अभी इसमें करना क्या है, ठीक है ना, अभी इसमें करना क्या है। तो देखिए इस नंबर को देखिए यहाँ पे, you have 202 into 20002, so I can write 202 as 101 into 2, okay, as 101 into 2, and I can write this 2 as, इसको लिख सकते हैं 2 into 10001 into 2, so basically 4 into 101 into 10001,
ठीक है, 4 × 101 एंड 10001 ये हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करते हैं इसमें। सो फॉर दिस just multiply this one, okay, just multiply this. So you have 101, okay, so 10001, then you have 00000, then you have 10001, all right. So basically ये आ क्या रहा है, 1010101, okay, ये आ रहा है 1010101। अभी we got this number. Now look at this number. For this also, let's take 2 out of this, है ना। तो क्या नंबर हो जाएगा, 2 × 4, ये नंबर यहाँ रख लीजिए। एंड नाउ यू बेसिकली हैव दिस नंबर एज 1010101, ऑल राइट। अब ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, यू हैव 7 नंबर्स, यू हैव 7 नंबर्स, एंड अगर ये 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये 8th नंबर हो जाएगा, एंड ये डिजिट 9th नंबर हो जाएगी। सो बेसिकली यू हैव 10⁸ हियर, ओके, यू हैव 10⁸ हियर प्लस 1, एंड जिसमें 2 इंटू था तो 2 हमने यहाँ लिख लिया है, ठीक है ना, 2 हमने यहाँ लिख लिया है। तो अभी देखिए आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आपने ये नंबर यहाँ से मल्टीप्लाई किया, आप इस नंबर को 10⁸ प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली नंबर क्या आएगा आपका, यहाँ पे 8 जीरोस लग जाएंगे आगे, प्लस आप ये 7 डिजिट उसमें प्लस करेंगे। तो बेसिकली करना क्या है यहाँ पे, 101010101 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, 1010101010101, okay, so you have these four number, all right, this number will be here, so this is 4 numbers, okay, this is 4 numbers and these are the 7 numbers, okay, and these are the 7 numbers, so ये वाली चीज है। now what happens here is कि ये तो आपका नंबर हो गया, है ना। इसमें डिजिट्स कितनी आई, ये 7 नंबर्स है, ये 8 नंबर्स है, सो टोटल यू हैव 15 नंबर्स, ओके, टोटल यू हैव 15 नंबर्स। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हमको ये करना है कि नाउ यू हैव 10⁻, ये 10 ये आपके पास ये 15 डिजिट का ये नंबर है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। एंड लुक एट दिस नंबर, दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना। 17 डिजिट का नंबर है, इसमें बेसिकली ये कितने जीरोज हैं, ये 15 जीरोज है ना। इसको मिला देंगे तो 16 जीरोज हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये नंबर को हम 10⁻16 प्लस 1 लिख सकते हैं, ओके, 10⁻16 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा, इस नंबर में 16 और 0 ऐड हो जाएंगे, और ये 15 नंबर ये भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो 15 नंबर ऐड हो जाएंगे, तो 10⁻60, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, ये 10101 का 31 नंबर का सीक्वेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे 31 जीरोज हैं, तो 10⁻32 प्लस ये जो 101 का 31 नंबर का सीक्वेंस है, इसके साथ प्लस 1 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 63 नंबर का सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है, आपका 63 नंबर का सीक्वेंस हो जाएगा, जिसमें आपको 10101010 ऐसे करके आपको बेसिकली 63 नंबर मिलेंगे, ठीक है, 63 नंबर मिलेंगे। अब देखिए हमने ये जाना कि हमारे पास एक ये नंबर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, जिसमें 10101 के 63 नंबर का सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है, 63 नंबर का सीक्वेंस मिलेगा। अब देखिए ये आपका क्या है, हमने 2 सबसे कॉमन ले लिया था, तो 2 की पावर 5 यहाँ इकट्ठा हो गया, तो ये 32 हो गया। अब अगर देखिए 32 को आप 101 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो यू विल गेट व्हाट हियर 202 303, है ना। तो 3232, तो अगर हम 1010101 को 30 ये चलता जा रहा है फॉर 63 डिजिट, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको आएगा पता है क्या, 323232 ऐसे करके आपको आता जाएगा, ठीक है ना, 323232 आपको आता जाएगा। कितने कितने के लिए,
62 नंबर्स के लिए, 62 नंबर्स के लिए। तो बेसिकली हमारे पास कितने हो गए 63 नंबर्स के लिए? तो हमारे पास 32 नंबर के पेयर हो गए, है ना? हमारे पास ये नंबर के 32 पेयर हो गए, 32 पेयर हो गए हमारे पास इस नंबर के, ठीक है? इंटू 5 कर दीजिए, क्योंकि एक पेयर कितना ऐड अप हो रहा है 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 160। सो योर आंसर बिकम्स 160। तो बस ये इसको मल्टीप्लिकेशन तो किया हमने, बट एक ट्रिक लगाई जिससे हमें ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। सो दिस इज व्हाट वी डिड इन दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। नाउ यू हैव दिस नंबर 7777, एंड ये जो 7 डिजिट है ये अपने आप को 6 कीजिएगा। आपको साइक्लिकल नंबर जब देखेंगे तो 10 मिल जाएगा, 13n प्लस 10 के फॉर्मेट में आपका आ जाएगा। See, look at this question. How many number less than 100 have exactly 4 factors? Okay. How many number less than 100 have exactly 4 factors? तो कितने factors होंगे of any number that is less than 100? Okay. So 100 की बात करें, 4 factors की बात करें, तो basically क्या हो रहा है कि any number has two factors, whether prime number or any other number, we have to find the number which has just two more factors. Okay. तो अगर देखिए 100 से नीचे जितने भी नंबर का स्क्वायर आप करेंगे, अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर या क्यूब करिए, तो उसके आपको 4 फैक्टर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 का क्यूब करते हैं तो देखिए 8 आएगा। 8 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 इटसेल्फ, 4 ही फैक्टर हो रहे हैं। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर करिए तो आपको 9 मिलेगा। तो 9 के कितने फैक्टर्स है? 1 है, 3 है, सॉरी 3 का क्यूब करना है, सो 27 है। आपका कितने फैक्टर्स आएंगे? 1 है, 3 है, 9 है और 27 है। ओके, सो यू हैव जस्ट 4 फैक्टर्स फॉर दिस। ठीक, अभी देखिए अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ फिजिबल नहीं होगी, बिकॉज 64 है, ठीक है ना? 64 है, इसके उससे ज़्यादा फैक्टर है, 1 है, 2 है, 8 है, 4 है, 16 है, ठीक है ना? सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस। 5 स्क्वायर की बात करें तो 125 आएगा, बट दिस बिकम्स ग्रेटर देन 100। तो ये जो क्यूब है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब है 2 और 3 के, दैट इज 8 और 9, ये हमारे ऐसे नंबर है जिनके सिर्फ 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है? और किस नंबर के 4 फैक्टर्स होंगे? आप दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करिए जो कि 100 से छोटे हों, तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है? तो हम 2 से चालू करते हैं, तो 2 इंटू 3 कर लीजिए, ठीक है? 6 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 एंड 6 इट सेल्फ। इसी तरीके से 2 इंटू 5 कर लीजिए 10, ठीक है ना? 2 इंटू 7 कर लीजिए 14, 2 इंटू 11 कर लीजिए 22 हो गया, 2 इंटू 13 कर लीजिए 13 कर लीजिए, इसके भी दो ही फैक्टर्स होंगे। 2 इंटू 17 कर लीजिए, दो ही फैक्टर्स होंगे। 2 इंटू, तो ये 34 आ जाएगा। 2 इंटू 19 कर लीजिए 38, चार ही फैक्टर्स हैं इसके। उसके बाद 2 इंटू 21 22 23 कर लीजिए, तो ये 46, इसके भी चार ही फैक्टर हैं। फिर यू 24 25 26 27 28 29 कर लीजिए, इसके कितने फैक्टर्स हैं? 58 के चार ही फैक्टर हैं, ठीक है ना? 29 एंड देन यू हैव व्हाट 31। 31 के कितने फैक्टर्स हैं? 31 के, यानी कि 62 के कितने फैक्टर्स है? चार ही फैक्टर है, 2 31 1 एंड 62 इटसेल्फ, ठीक है ना? इसके बाद 33 हैज फैक्टर्स, 34 हैज फैक्टर, 35 36 37। Okay, so you have what? Now this comes to be 74. How many factors this number has? Only 4. Then you have 39 40 41. 84 is the number. How many factors you have? Obviously you have only 4 factors for this. Then 42 43. 43 is what? It is 86. How many factors for this number? Only 4. Then you have 47. Then you have 47. Then it becomes 94. How many factors for this number? 94. Only 4 factors. ठीक है ना? Then 7 sevens are 49, so you can't go there. Then 50, and then you have
51. Thus 51 is 51 a prime number? No. 17 into 3 is 51, you know. Then you have 52, 53. Is 53 a prime number? Yes, definitely it is. So you have 53, but this number will be bigger. So we have only these many numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 numbers have we have. So 2 plus 14. Now your job is to find other numbers which have only two factors. So you have 3 into यू विल स्टार्ट विथ ऑब्वियसली कि आप प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 into 3, ठीक है, 3 into 7 एंड सो ऑन. सो यू कैन काउंट दिस नंबर. अगर आपका कोई नंबर रिपीट हो तो उसको माइनस कर दीजिएगा एंड देन यू विल हैव द नंबर ऑफ फैक्टर्स. ऑलराइट, सो आई टोल्ड यू द ट्रिक, यू कैन फाइंड द आंसर. आई टोल्ड यू द ट्रिक, यू कैन ऑब्वियसली फाइंड द आंसर. See, now look at this question. Guys, look at this question. X factorial is completely divisible by 50, is completely divisible by 11 by 51, but not divisible by 11 by 52. Okay, x factorial is completely divisible by this number but not divisible by. So what is the sum of the digit of the largest number? So basically what it is saying is that कि कोई नंबर x है और दैट इज डिविजिबल बाय 11 टू द पावर 51. अब देखिए ये हमको निकालते आता है क्या, कि ये जो x नंबर है इसको जब 11 से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब तक निकलता जाएगा तो उतनी पावर उसकी चढ़ा देंगे, ठीक है ना. तो ये तो बोल ही रहा है कि ये 51 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है. तो 11 इंटू 51 करके देखते हैं. ऑलराइट, 11 इंटू 51 करके देखते हैं. सो 11 इंटू 51 क्या होगा, इट इज ऑब्वियसली 51 एंड 51, सो दिस इज 561. दिस इज 561. अब देखिए 561 को अगर डिवाइड करते हैं 11 से, ठीक है, तो क्या आएगा, ऑब्वियसली आपका 51, क्योंकि अभी तो हम यही कर रहे थे, 51 आएगा. क्या 561 के आगे भी डिविजिबल है, ठीक है, तो आप इसको 11 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है. ये 561 का जो फैक्टोरियल है, क्या ये 11 की और पावर से डिविजिबल है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, 11 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है. तो 561 इज डिविजिबल बाय 121. ओके, ऑब्वियसली हाउ मेनी टाइम्स, तो देखिए 1 2 5 5 टू 10, ये 605 टाइम्स, तो ऑब्वियसली 4 टाइम्स. तो ये कितना आ जाएगा, 55 की पावर से डिविजिबल है. ये जो हमारा 561 है ना, ये 55 की पावर से डिविजिबल है. तो ये 52 की पावर से तो डिविजिबल होगा ही. तो हमको ऐसा नंबर चाहिए x जो 11 रेज टू द पावर 51 से तो वो हो, डिविजिबल हो, पर 11 रेज टू द पावर 52 से डिविजिबल ना हो. सो देखिए आगे बढ़ते हैं. इसमें 561 डिवाइडेड बाय 11 कर लीजिए. अब देखिए इसमें इस नंबर को हम थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. इस नंबर को छोटा करने की कोशिश करते हैं. कैसे छोटा करेंगे इसको, देखिए लेट्स सी कि ये जो नंबर है बेसिकली ये 51 ही रहे. ऐसा नंबर जो ये 561 की जगह ऐसा नंबर रखें कि ये 51 ही रहे, मतलब कि अब ये क्या है, आगे जा करके इससे डिविजिबल ना हो, ठीक है ना, इससे डिविजिबल ना हो, ठीक है. तो ऐसा ही नंबर रखना है. तो लेट्स सी विच नंबर इज लाइक दैट. ओके, विच नंबर इज लाइक दैट. सो वी कैन नाउ फाइंड आउट. तो आगे क्या करेंगे, 561 को आप थोड़ा छोटा करके देखिए. लाइक लेट्स से कि 520 करके देखते हैं, ठीक है ना. 520 करके देखते हैं. ओके, सो आगे निकल जाएगा.
क्या करते हैं, 11 के किसी फैक्टर से इसको सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि 11 की फैक्टर की पावर 52 डिविजिबल ना हो, लेकिन 11 की पावर 51 हो। ठीक है, 561 की जगह हम इसको क्या करते हैं, 11 से माइनस करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो हम इसको लेट्स से 11 की पावर 33 से माइनस करते हैं। दिस बिकम्स 8, दिस बिकम्स व्हाट, ये तो 3 रहेगा। ठीक है ना, this becomes 8, this becomes 5, so this becomes 528, and 528 when divided by what, when divided by 11, what are you going to get? 528 when divided by 11, so 528 when divided by 11, you are going to get obviously what, here, um, it will go how many times, 4 times, okay, 44, all right, 44, and this will be what, 88, so 48 times, okay, this will be 48 times, and then 528 divided by 11 square, 528 divided by 11 square, so you have 121. Is 121, is 528 divisible by 121? Yes. How many times? Obviously 4 times, so you have 4 here. ओके, 5 टाइम्स तो होगा नहीं, तो हमको पता चला कि ये 52 से डिविजिबल है। ठीक है, 11 की पावर 52 ये दे सकता है 528, तो 527 कर देते हैं, है ना, 527 कर देते हैं, है ना। अगर 527 करेंगे तो देखिए, दिस इज व्हाट, 4 8 484, ओके, 484, 528 when divided by this 4 times, okay, this becomes 484, तो ये क्या हो जाएगा, this is basically 4, all right, again 4, and this is again 0, so you have this, sorry, this will be 34, okay, this will be 34, okay, ओके, ऑल राइट, 527 कर दीजिए, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट नहीं रह जाएगा, समथिंग 3 पॉइंट रह जाएगा। ठीक है ना, 3 3 पॉइंट रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 48 प्लस 3 51 हो जाएगा। ओके, 51 हो जाएगा। देखिए, हमें यहाँ पे 52 मिला, एंड देन 527 अगर लेते हैं, ठीक है ना, इसको 11 से करके देखिए, यू हैव व्हाट, 4 टाइम्स 44, ओके, एंड देन यू हैव 87, you can only divide this 7 times, okay, you will get 47 here, and you will get 4 here, this will become 51, all right, this will become 51, you have 527, and it is asking what is the sum of the largest digit, तो ये basically क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, this basically becomes 14, I hope everybody is okay with this, understood this well. Okay, now look at this question. P is a natural number of at least 6 digit, and its leftmost digit is 7. When this leftmost digit is removed from P, the number thus obtained is found to be 1 by 21 times of P. What is the product of all the non-zero digits of P? Okay, P एक natural number है, at least 6 digit का है, ठीक है ना, तो चलिए at least 6 digit का मान लेते हैं। बोल रहे हैं कि leftmost digit जो है वो 7 है, ठीक है, तो 7 इंटू 10 टू दावर 5 प्लस n मान लेते हैं इसको, ओके, प्लस सम नंबर k, तो ये बेसिकली क्या होगा, इस नंबर का डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि देखिए अगर आपके पास 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना, एटलीस्ट 6 डिजिट का नंबर है, तो 7 इंटू 10 टू दावर 5 क्या हो जाएगा, 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 6 डिजिट का है, तो हम 5 प्लस n कर देते हैं, तो
एटलीस्ट 6 डिजिट तो है, अब n0 है, 1 है, 2 है, उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी डिजिट है। ओके, प्लस के कर देते हैं क्योंकि के कोई ऐसा नंबर है जो इसमें ऐड हो रहा है। ओके, के कोई ऐसा नंबर है जो इसमें ऐड हो रहा है इसके अलावा। Now this is saying when this leftmost digit is removed from P, then the number obtained is 1 by 21 times of P. ठीक है, तो अगर ये leftmost digit यही है, इसको remove कर देते तो number that will be left is K. So K is what? This number is 21 times of K. When this leftmost digit is removed from P, the number obtained is thus found to be 1 by 21 times of P. ओके, तो मतलब P जो है वो 21 टाइम्स ऑफ दिस K है, तो ये P नंबर ये है, ये है। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स ऑफ P? ठीक है, तो यानी P फाइंड करना पड़ेगा। तो 7 इंटू 10 to the power दिस, ये ये बेसिकली बिकम्स क्या, 20K। ओके, दिस बेसिकली बिकम्स 20K। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। ऑल राइट, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। सो नाउ यू हैव व्हाट, 7 इंटू 10 to the power 5 इंटू 10 to the power n, एंड दैट इज व्हाट, 20K के बराबर, 20K के बराबर। सो बेसिकली यू आर गेटिंग हियर 7 into 10 to the power 5 into 10 to the power n, and this is equals to 20K. So now you have K is equals to 7 into 10 to the power 5 into 10 to the power n divided by 20, alright, into n divided by 20। अब ये देखिए, इसके बाद 7 के बाद 5 zeros होंगे, ठीक है। सो ये क्या है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, ये इतने zeros होंगे, alright, इतने zeros होंगे। सो यू हैव व्हाट, you have 3 5 3 zeros, all right, क्योंकि 70 होगा तो 3 5 3 zeros into 10 to the power n, that will be equal to K, that will be equal to what, K। So now P becomes what, P becomes 7 3 5, all right, because क्या है, K अगर ये है तो P क्या है, 7 3 5 है, ठीक है। 7 3 5 डबल, ये 3 zeros एंड 10 to the power n। नाउ आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स ऑफ P, तो ये जीरो डिजिट है, ये जितना भी रेस करेगा पावर वो सारी जीरो डिजिट होंगी। तो नॉन जीरो डिजिट का प्रोडक्ट क्या होगा, 7 into 3 into 5, तो बेसिकली ये क्या होगा, 15 into 7 विच इज 105। So I hope everybody understood this. If not, because this is on the little trickier side, so let's repeat this once more। इसमें क्या करना है हमको कि ये बोल रहा है कि P is a natural number having at least 6 digit, तो at least 6 digit को हम कैसे represent कर सकते हैं, take P as a natural number having at least 6 digit with leftmost digit 7 है। तो leftmost मतलब क्या, पहली digit 7 है, तो उसको हम 10 to the power उतने के ही फॉर्म में लिखेंगे ना, 10 to the power 6, है ना। अगर मान लीजिए आपको बोला कि 300 प्लेस पे है, तो आप क्या लिखोगे, 10 to the power 2। तो इसी तरीके से 7 इंटू 10 to the power 6, लेकिन वो बोल रहा है एटलीस्ट, तो इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, तो हम क्या कर देते हैं, 5 प्लस n करेंगे। 5 प्लस n क्यों किया, क्योंकि देखिए 7 into 10 करेंगे तो 2 डिजिट हो जाती है, तो 7 into 5 करेंगे तो 6 डिजिट हो जाएगी, इंटू 10 to the power 5 करेंगे तो 6 डिजिट हो जाएगी। तो 7 into 10 to the power 5 प्लस n, और देखिए इसमें कुछ नंबर k भी प्लस होगा, जो कि ऐसी डिजिट होगा जो ये 70,000 ऐसा करके नंबर है, उससे एडेड होगा तो ये नंबर पूरा बनेगा, ठीक है ना, तो ये नंबर पूरा बनेगा। अब ये बोल रहा है आगे क्वेश्चन में कि द नंबर दस ऑब्टेन इज फाउंड टू बी 1 by 21 टाइम्स ऑफ P। सो ये 21 इंटू P कर देते हैं, है ना, 21 टाइम्स ऑफ P, तो
द नंबर thus obtained is found to be 1 by 21 times of p। तो ये नंबर क्या होगा, ये हट जाएगा तो ये k हो जाएगा, ये नंबर ओके, ये नंबर k हो जाएगा, क्योंकि आप 7 हटा दीजिए तो नंबर तो वही बचेगा ना जिससे अब ये 0 डिजिट को ऐड किया। ओके, तो देन अब आपका क्या हो जाएगा, दिस इज 7 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻n and 20k। So k becomes what? K becomes 3 5 and how many zeros? Sorry, 7 and how many zeros? 5 zeros. 1 2 3 1 2 3 4 5, okay, 5 zeros into 10 to the power n divided by 20. Now cut these zeros, this becomes obviously 35 uh, thousand, okay, 35,000 into 10 to the power n। now this is k, all right, तो p क्या था, बस यहाँ पे 7 और लगा दो तो p है, तो 73500 इंटू 10 टू द पावर n। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि सारे नॉन जीरो डिजिट्स का प्रोडक्ट बताइए, तो ये सब 0 डिजिट है, बाकी तो सब नॉन जीरो डिजिट तो यही है ना। तो 7 इंटू 3 इंटू 5 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा। तो इसमें ये अप्रोच लगानी थी, तो ये थोड़े टफर एंड के क्वेश्चन है, हम इनके लिए ज्यादा प्रिपेयर करेंगे अपने सी सैट में, नंबर सिस्टम्स में। ऑल राइट, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द डेमो, but still it is my responsibility to explain this concept again inside the course, so I'm explaining। so if we have to find the last digit of any number, what is the unit digit of the expansion raised to these power, ठीक है ना। तो अभी देखिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ यू हैव सीन डेमो, कि ये जो नंबर है इसका आप एक्सपेंशन करेंगे कैलकुलेटर में, आपको आंसर नहीं मिलेगा, है ना, व्हाट इज द लास्ट डिजिट, इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो हमको इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना है क्या, कि कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 31 है, एंड वी आर रेजिंग दिस नंबर टू द पावर 31, सो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 1 ही होगी। वाई, बिकॉज देखिए लास्ट डिजिट तो हमेशा 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 ही होगी। बट अगर इसको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में देखना चाहें तो देखिए इसको 4n के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, तो अब तो हमें रिमाइंडर थ्योरम पता है, तो इसको 4 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4n+3, 4n+3 के फॉर्म में आएगा। तो अगर आपका ये 31 इज रेज टू द पावर 4n+3, सो दिस लास्ट डिजिट शुड बी 1 ओनली, okay, but if for example the digit is 32 to the power 4n+3, so the last digit of this calculation will be what, will be 8, okay। if it is similarly 33 is raised to the power 4n+3, so the last digit of the calculation will be what, 7। and if 33 is raised to the power 4n+4, so the last digit of this calculation will be what, 4 only, will be 4 only। तो ये वाली चीज है। नाउ यू विल अगेन से दैट हाउ विल आई रिमेंबर दिस टेबल। तो देखिए टेबल एक्चुअली कुछ रिमेंबर करने वाली नहीं है, ये एक तरीके की साइक्लिसिटी है जो आपको वैसे भी पता चल जाएगी। यू रे, अगर आपका मान लीजिए नंबर है 32 × 32, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका लास्ट डिजिट तो 4 ही आएगा ना, लास्ट डिजिट आपका क्या आएगा, 4 ही आएगा, ओके। इसी तरीके से आप इसमें एक और 32 ऐड कर दीजिए, तो आपका लास्ट डिजिट तो 8 ही आएगा ना। सो दिस बिकम्स, एंड इसमें आप एक और 2 ऐड कर दीजिए, तो आपका लास्ट डिजिट तो 16 ही आएगा ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो और अगर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आपका 4n+1 है, लास्ट डिजिट 2 है, सो 2 की पावर 1, योर आंसर बिकम्स 2, 2 की पावर 2, योर आंसर बिकम्स लास्ट डिजिट 4। अगर 4n+3 है तो 2 का क्यूब करिए, लास्ट डिजिट अगर 2 है तो 2 का क्यूब करिए, आपका लास्ट डिजिट का आंसर 8। अगर 4n की पावर 4 है, ठीक है, तो लास्ट डिजिट का आप क्या करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ 4n, तो 4n ही रखिए, है ना, की पावर 4 है तो आपका 16 आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप 3 में चेक करिए, सो यू हैव 4n+1, ओके। सो 3 की पावर 1 रखिए तो 3 आएगा, 3 की पावर 4n+2 के लिए 2 रखिए तो 9 आ जाएगी लास्ट डिजिट, 3 की पावर 3 रखिए इसके लिए तो 7 आ जाएगी लास्ट डिजिट, और 3 की पावर 4 रखिए तो आपकी लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आप बोलेंगे कि अगर 4n+4 से ज्यादा का नंबर आ गया तो, है ना,
तो देखिए 4n+5 नहीं मिलेगा, क्यों? बिकॉज एनी नंबर विच इज अ नेचुरल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मेट। आपके सारे नंबर ये सेटिस्फाई कर ही जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, 4n+1 2 3 और 0, है ना, क्योंकि इसके रिमाइंडर्स के फॉर्म में। सो एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस नंबर, है ना। अब तो हमने रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ लिया है। सो ये कॉन्सेप्ट है इसका बेसिकली। आगे देखते हैं कि हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सो सी, you have this 25 6251 36 raised to the power 528 plus 73 raised to the power 54, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? तो देखिए इसका 4 से इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए। सो व्हाट विल बी दिस, 4 1s are 4, 4 3s are 12, okay, 4 1 times 4, 4 3s are 12, then again 4 1 times 4, and then again 4 2 times 8, तो रिमाइंडर क्या बचता है, 3। तो 25 रेज टू द पावर 4n+3। अब हमको तो पता है 5 को तो आप कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आखिरी डिजिट 5 ही देगा, तो इससे लास्ट डिजिट 5 मिल गई। ये 528 है, इससे लास्ट डिजिट क्या मिलेगी? ओके, ये 528 है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 4, तो दिस नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 4n। योर लास्ट डिजिट इज 6। 6 जब भी लास्ट डिजिट होती है तो वो 6 ही देता है, आप 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 6 देता रहेगा। सो दिस विल बिकम 6। नाउ देर इज 3 हियर एंड दिस इज 27, दिस इज 54 हियर। नाउ दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4, बट वी नो 52 इज डिविजिबल बाय 4। 52 डिविजिबल बाय 4 है ना। Why? Because 4 1s are 4 and this will be what, 4 3s are 12, तो ये 4n+2 के फॉर्म में है ना, 4n+2 के फॉर्म में है। तो 3 का स्क्वायर करिए, 9 है आपकी लास्ट डिजिट। सो ये डिजिट क्या आ जाएगी, 11 + 9 is 20, so 0 is the last digit, so it is this easy, 0 is the last digit। so you can accordingly do all the questions, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं सिमिलर फॉर्मेट, 55 रेज टू द पावर 725, 4 से डिवाइड करिए 725 को, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, 4 1s are 4, then you have 32, then you have 4 8s are 32, okay, and then again 4 1 times, you have 3 as your remainder, you have 3 as your remainder, all right। so 4n+3 का फॉर्मेट करिए। यहाँ तो देखिए 5 आएगा, इसे तो कैलकुलेट ही मत करिए, है ना। 5 हो गया, 6 हो गया, इनको तो कैलकुलेट ही मत करिए। 73 का करिए, 810, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं। तो करते हैं, 4 1 times 4, all right, 4 4s are 16, all right, 4 5s are 20, all right, and 4 2s are 8, all right, so you have 2 as your remainder। so this is in the form of 4n+2। 4n+2 है तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। 9 आ जाएगा लास्ट डिजिट, यहाँ से 5 मिल गया, यहाँ से 9 मिल गया, देन यू हैव 22 टू द पावर 853, 853। तो देखिए इसमें रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, बेसिकली -1 मिलेगा। हाउ हाउ आई कैलकुलेटेड सो फास्ट, देखिए ये 52 होता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होता, नो सॉरी, +1 रिमाइंडर मिलेगा, 4n+1 मिलेगा, 51 होता तो माइनस आता, सो +1 होगा, तो ये देखिए 53 है, +1 हो जाएगा, बिकॉज क्या, 4 2s are 8, है ना, 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12, आपका +1 रिमाइंडर आ जाएगा। सो दिस इज वेरी एपरेंट, है ना। तो 4n+1 है, 2 का 2 ही रह जाएगा, आपका 2 आया, 9 आया एंड 5 आया, ऐड करिए, क्या आ जाएगा, दिस इज 11 + 5 16, सो 6 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, 6 रिमाइंडर आ जाएगा, ओके। सो ऑब्वियसली यू कैन डू दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन नाउ वेरी इजीली, ये सबको ट्राई करिएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ऑल राइट, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, okay। Now you can try all these numbers by yourself, okay। So this is up for this class, we'll see you in the next class.